Hello, good morning, guys. Welcome back to my channel English with Pramila. How are you all? Hope you all are flying high. So, today we are going to do the pronouns and its kind. Pronoun is a word used instead of noun. Like I will take few examples which will clear your doubts. Hari is my neighbor. Hari is a very gentle person. Hari has two sons. So here you have observed that again and again I am making use of the word Hari. So dear students, to avoid the repetition of Hari, we will use the word which is called pronoun, like Hari is my neighbor, he is very gentle, and he has two sons. So this is how we have replaced, or we can say we have avoided the repetition of the word Hari, of the noun Hari, and we have used the pronoun he here. This is called pronoun. And like Hari is the simplest name, it's easy to write again and again. But many people have big name also. Like one my principal was there whose name was Rama Lakshmi Arunachalam. So when we will say Mrs. Rama Lakshmi Arunachalam is our principal, she is very kind, she is very soft spoken. So I have used the word she, it's okay. But again and again if I will use her name, like Rama Lakshmi Arunachalam is very good, Rama Lakshmi Arunachalam is very kind, Rama Lakshmi Arunachalam was my principal. So to write this name again and again is not so easy. To avoid the repetition of the noun again and again, we replace it by the pronoun which is she here. So this is how pronoun is clear to all of us, that the word which used instead of noun is called pronoun. Now let us talk about its kind. So dear friends, pronouns are 10 in numbers. Pronouns are 10 in numbers: personal pronoun, interrogative pronoun, indefinite pronoun, relative pronoun, reflexive pronoun, emphatic pronoun, demonstrative pronoun, reciprocal pronoun, distributive pronoun, and possessive pronouns. So the nouns, one by one we will start now. First of all, we will come to the personal pronouns. So they are pronouns which stands for the names of person or things. There are three persons: first person, second person, and the third person. Now the first person is the person who speaks. The speaker, the doer who speaks comes under the first person, and that is I and we. This is the, we can say, subject also, because the speaker, the doer stands here. For the first person we use I, we. For the second person, this is the person spoken to. This is the person spoken to. Here we will use you. Now the third person is the person or thing spoken of. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो है spoken of. तो ये हमारा थर्ड पर्सन के अंदर आएगा, और इसके अंदर आता है he, she, it, एंड प्लूरल के लिए they आता है. तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ अस कि फर्स्ट पर्सन इज द स्पीकर, द डूअर, या जो बोल रहा है वो हमारा फर्स्ट पर्सन है, उसके अंदर आई और वी आएगा. सेकंड पर्सन हमारा जिसको बोला जा रहा है, द पर्सन टू whom we are speaking, that comes under the second person, और ये हमारा you होता है. और थर्ड पर्सन हमारा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो होता है he, she, it and they. he, she, it, ही हमारा मैस्कुलिन सिंगुलर प्रोनाउन हो जाएगा, she हमारा फेमिनिन सिंगुलर प्रोनाउन हो जाएगा, और इट जो है वो हमारा लाइफलेस थिंग्स के साथ आता है, एनिमल्स के साथ आता है, और बेबी के साथ आता है. और जब हम इसका यूज़ आगे ऑब्जेक्ट के रूप में भी करेंगे और सब्जेक्ट के रूप में करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इट इज़ कॉमन इन बोथ द थिंग्स. एंड दे इज द प्लूरल ऑफ ऑल द अबाव. They is the plural of all the above. So personal pronouns are used in three ways, or we can say personal pronouns have three functions. So the three functions are
subjective pronouns, objective pronouns and possessive pronouns. So like we will take one by one so that it will be clear to all of us. फर्स्ट पर्सन में हमने लिया था सब्जेक्ट आई और वी. तो जब हम आई और वी को ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा और वो बन जाएगा हमारा मी एंड अस. लाइक माई मदर कॉल्ड मी, तो यहां हम ये तो नहीं बोलेंगे कि माई मदर कॉल्ड आई. तो आई का जो ऑब्जेक्ट है, जब आई ऑब्जेक्ट में चेंज होगा तो वो मी बन जाएगा. ऐसे ही माई मदर कॉल्ड अस, यहां पे हम ये तो नहीं कहेंगे कि माई मदर कॉल्ड वी. वी जो है जब ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा तो वो अस हो जाएगा. और ऐसे ही फिर पॉजेसिव के रूप में होता है. यहाँ पे आई इज द सब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा और जब वो पोजेशन शो करेगा, पॉजेसिव प्रोनाउन होगा, तो वो माई और माइन में चेंज हो जाएगा. दिस बुक इज माइन, ये मेरी किताब है. दिस बुक इज माइन. सो माइन इज द पॉजेसिव वर्ड हियर. हम यहाँ ये तो नहीं कहेंगे दिस बुक इज आई और दिस बुक इज मी. क्या बोलेंगे? दिस बुक इज माइन. तो दिस इज हाउ हमने पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन के फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड पॉजेसिव प्रोनाउन. अब हम सेकंड पर्सन का सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ेंगे. तो हमने पहले ही क्लियर कर लिया है कि सेकंड पर्सन में हमारा यू यूज होता है और यू ही हमारा, अगर हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो भी यू ही आएगा. माई मदर इज कॉलिंग यू, तो माई मदर इज कॉलिंग यू, तो यू इज द ऑब्जेक्ट ऑल्सो, यू इज द सब्जेक्ट ऑल्सो. और जब इसको हम पॉजेसिव में चेंज करेंगे तो ये हमारा योर एंड योर्स हो जाएगा. दिस इज योर बुक, दिस इज योर्स. This is how. So this is how we have completed the first person, second person. Now let us come to the third one. थर्ड वन में जो हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो है ही, शी, इट, सिंगुलर के लिए. ये हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं. तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ही का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हिम और शी का हो जाएगा हर. और इट इज कॉमन फॉर बोथ, for the subjective also and for the objective pronoun. In both the pronouns we will use it as the common. And they, as it is plural, तो they का हो जाएगा them. तो they का they subjective pronoun will change. अगर हम उन्हें ऑब्जेक्ट में हम अगर subjective pronoun they को चेंज करते हैं तो it will come them. they का क्या हो जाएगा? them. तो और जब हम इनकी पॉजेसिव्स बनाएंगे तो ही का हो जाएगा हिज, ही का हो जाएगा हिज. दिस इज हिज बुक. हम ये नहीं कहेंगे दिस इज हिम बुक, ऐसा नहीं बोलेंगे. क्या कहेंगे? दिस इज हिज बुक. दिस इज हर बुक. हर इज कॉमन इन पॉजेसिव प्रोनाउन एज वेल एज इन द ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. दे का जो हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है वो क्या हो जाएगा? देयर एंड देयर्स. तो दिस इज हाउ the personal pronoun is clear to all of us. It is totally like the noun, just in spite of noun we have to use the word pronouns which we have discussed. It has three persons, first person, second person and third person, and we have divided the person into the subjective pronoun, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड द पॉजेसिव प्रोनाउन. अगर हम इन सबको इकट्ठा करके बोलेंगे तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन में हमारा आता है आई, माई, मी, वी, अवर, अस. और सेकंड पर्सन में हमारा कलेक्टिव करके जब हम बोल रहे हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन को, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को और पॉजेसिव प्रोनाउन को, तो हम बोलेंगे कि सेकंड पर्सन हमारा यू, योर्स हो जाएगा. और थर्ड पर्सन हो जाएगा ही, शी, इट, दे, देम, देयर. This is how the first personal pronoun is completed. Now let us come to the second one, and that is the interrogative pronoun. So students, these pronouns are used for asking questions, as it itself telling us the meaning कि हम interrogative pronouns का use प्रश्न पूछने में, questions करने में use करते हैं. Example इसके words हैं like who, whom, which, whose and what. These are the words which we use for asking the questions. Now comes what. First of all we will take who, whose and whom. These
आर यूज्ड फॉर द पर्सन, ये पर्सन के लिए यूज होंगे हु, हुज एंड हुम, यानी कि व्यक्ति के लिए यूज होगा हु, हुज एंड हुम। और आपका जो वट है, वट यूज होगा आपका थिंग्स के लिए। वट का यूज हम थिंग्स के लिए, जब हम थिंग्स के लिए क्वेश्चंस करेंगे तो वट का यूज करेंगे। और विच आपका कॉमन है, जो कि दोनों में, बोथ में यूज होगा, आपके व्यक्ति के साथ भी, पर्सन के साथ भी, और आपके थिंग्स के साथ भी। विच इज कॉमन फॉर बोथ द थिंग्स, लिविंग थिंग्स एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स। एंड द वर्ड्स who, whose and whom are used for the person, and the word what is used for the thing, and which is common for both of them. So both interrogative pronoun and relative pronoun looks alike. अब हम जब आगे करेंगे तो हम देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, उनमें भी सेम वर्ड्स यूज होते हैं, हु, हुज, हुम, इस तरह से। और यही हमारे इंटरोगेटिव में भी यूज होते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है, जो हम आगे रिलेटिव करेंगे तो हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अब बारी आ जाती है हमारी रिलेटिव प्रोनाउंस की। सो स्टूडेंट्स, रिलेटिव प्रोनाउंस इज वन विच इज यूज्ड टू रेफर टू नाउन्स यूज्ड प्रीवियसली। जो नाउन हम पहले यूज कर चुके हैं उनसे जो संबंध देता है, संबंध स्थापित करता है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस। जो अपने से जस्ट पहले नाउन के बारे में बताता है, उस जस्ट पहले नाउन को हम एंटीसीडेंट भी बोलते हैं। तो उसके बारे में जो हमें संपर्क स्थापित करता है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस, वेदर दे आर पीपल, थिंग्स और आइडियाज, सच एज who, which, whose, whom, that, etc. Relative pronouns is used to join two sentences. जैसे हम कंजंक्शन में करते हैं ना, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम who, whose आदि वर्ड्स का यूज करते हैं। सेम यहाँ पे हमारे रिलेटिव प्रोनाउन में भी हम इन डिफरेंट वर्ड्स का यूज करेंगे और इसको जोड़ेंगे, और ये हमारा बन जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। इट शोज रिलेशन विद द प्रीसीडिंग नाउन एंटीसीडेंट, जो मैंने अभी डिस्कस किया था आपसे कि अपने प्रीसीडिंग नाउन, जो इससे जस्ट पहले नाउन आता है, उसके साथ जो रिलेशन शो करता है, उस नाउन को हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट। उस नाउन को क्या कहेंगे, एंटीसीडेंट। रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड इन टू वेज। दो तरीके से हम रिलेटिव प्रोनाउंस को यूज करते हैं। एक तो हमारा कंटिन्यूटिव है और दूसरा हमारा है रेस्ट्रिक्टिव। फर्स्ट इज कंटिन्यूटिव। अब ये कंटिन्यूटिव क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन डज नॉट डिस्क्राइब इट्स एंटीसीडेंट। इसमें जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो अपने एंटीसीडेंट को डिस्क्राइब नहीं करेगा, और जो हमारा रेस्ट्रिक्टिव प्रोनाउन है वो रिलेटिव प्रोनाउन ये एंटीसीडेंट को डिस्क्राइब करेगा। अब हम इनके एग्जाम्पल्स ले लेते हैं जिससे ये हमारा डाउट क्लियर हो जाए। हम कॉन्टिन्यूटिव का पहले एग्जाम्पल लेते हैं। I met Ram who returned my book. I met Ram who returned my book. I met Ram who returned my book. तो this is the example of continuative. And restrictive के लिए है I know the boy. I know the boy who abused you. जिसने आपको गाली दी थी उस बच्चे को मैं जानता हूँ। I have read the book you gave me. तो दिस इज हाउ these were the examples of the relative pronouns। और हमने पढ़ा कि रिलेटिव प्रोनाउंस में भी और इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में भी जो वर्ड्स हैं हमारे वो लगभग सेम होते हैं, बट दोनों के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, अलग अलग तरीके से इनका यूज होता है। इंटेरोगेटिव में प्रश्न पूछने के लिए यूज होता है, और आपके रिलेटिव में दो क्लॉजेस को, दो फ्रेजेस को, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज होता है, और प्रोनाउन से जस्ट पहले जो नाउन होता है एंटीसीडेंट उसकी विशेषता बताता है या नहीं बताता है, उसके लिए यूज होता है। तो दिस इज हाउ वी हैव क्लियर्ड अवर रिलेटिव pronouns. Now the fourth one is reflexive pronoun. The self forms of personal pronouns are used here. Reflexive pronouns, when the action done by the subject turns back or reflects back upon the subject is called the reflexive pronoun. जब कर्ता कोई है तो उसके किए गए काम का इफेक्ट कर्ता पर ही पड़ता है, तो उसे हम आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं।
और इसमें हम यूज करते हैं आपके सेल्फ पर्सनल प्रोनाउंस में सेल्फ फॉर्म का। पर्सनल प्रोनाउंस आपको पहले ही बताए जा चुके हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे आदि। तो इनके साथ जब हम सेल्फ लगाएंगे, अगर सिंगुलर है तो SELF सेल्फ लग जाएगा, और अगर प्लूरल है तो सेल्स हो जाएगा, F हट के VES हो जाएगा, सेल्स, देम सेल्स, आर सेल्स, लाइक दिस। सो व्हेन सेल्फ इज एडिड टू माई, योर, हिम, हर एंड इट, तो ये हो जाएगा आपका माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, एटसेट्रा। And when SCLVES is added to R or your, then it will change like ourselves, themselves, etc. Example is I hurt myself, I hurt myself, we hurt ourselves. So this is how, this was the reflexive pronoun. Now let us come to the emphatic pronouns. So emphatic pronouns also seems alike the reflexive pronouns. इनमें भी आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह वही सेल्फ का भी यूज होगा और सेल्स का भी यूज होगा। सेल्फ आपका सिंगुलर के साथ आएगा और सेल्स आपका प्लूरल के साथ आएगा। द प्रोनाउन विच इज यूज टू एड एम्फेसिस, ये जोर देता है, एम्फेसिस करता है टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के सब्जेक्ट के ऊपर ये जोर देता है, एम्फेसिस करता है, इसीलिए इसका नाम भी एम्फेटिक प्रोनाउंस है। और यही आपका यूज है इसका, सिंगुलर, आपके सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन के साथ सेल्फ लगेगा और आपके प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन के साथ SELVES लगेगा। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं जिससे क्लियर हो जाता है। इसमें जो आई माई सेल्फ प्रिपेयर्ड माई ब्रेकफास्ट, इसमें ये ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, इसमें ये आई के ऊपर एम्फेसिस डाल रहा है कि आई माई सेल्फ प्रिपेयर्ड माई ब्रेकफास्ट। वी ourselves went to the trip, you yourself can study, they themselves admitted their guilt. This is how we have cleared the emphatic pronouns. So we have seen that reflexive pronouns और emphatic pronouns काफ़ी हद तक एक जैसे लगते हैं, दोनों में वही वर्ड्स यूज हो रहे हैं, बट इनका यूज अलग अलग है। तो चलिए अब हम आते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस पर। द प्रोनाउंस विच स्टैंड फॉर पर्सन्स और थिंग्स कंसिडर्ड इंडिविजुअली। द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर सिंगुलर इन नंबर and therefore take singular verb. These are singular in number and will take the singular verb, like each, everyone, everybody, either, neither, none, etc. These words are the distributive pronouns. Neither and either are used for two persons. Neither and either हम दो persons के लिए use कर सकते हैं, और each is used for two person या फिर टू से ज्यादा पर्सन के लिए हम ईच का यूज कर सकते हैं। अब आता है आपका एनी, नन, नो वन, दीज आर यूज फॉर मोर देन टू पर्सन्स। सो दिस इज हाउ द यूज इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ अस। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम ताकि और हमें क्लियर हो जाए। ईट ईदर ऑफ दीज टू बनानास, ईट ईदर ऑफ दीज टू बनानास। नीदर ऑफ द टू सिस्टर्स इज टॉल। Each one of you can do this sum. None of them can do it. Any of these 5 girls may dance. So this is how just now we have cleared distributive pronouns. नाम से ही पता चलता है वितरण करना। Distributive pronoun means वितरण करना। इसके लिए आपके जो वर्ड्स हैं वो हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं एक बार। Each, everyone, everybody, either, neither, none, etc. Either और neither का यूज दो के लिए, ईच का यूज दो या दो से अधिक के लिए, और एनी और नन और नो वन का यूज जो है मोर देन टू के लिए होता है। तो दिस इज हाउ वी हैव क्लियर्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। नाउ लेट अस कम टू द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन विच इज द 7th one. These pronouns are used to point out the objects. These pronouns are used to point out the objects to which they refer, and these are 4 in numbers: this, that, these, those. If it is singular तो we will use this. अगर कोई चीज मेरे करीब है,
मेरे बिल्कुल पास है और वो सिंगुलर है तो मैं दिस वर्ड का यूज करूंगी। और अगर कोई चीज मुझसे दूर है और सिंगुलर है तो मैं दैट वर्ड का यूज करूंगी, दैट बुक, दिस बुक, दैट बुक। और अगर मेरे पास मेरे करीब कोई चीज है लेकिन वो प्लूरल में है तो मैं दीज का यूज करूंगी, दीज पेन्स, दीज बुक्स, दीज बॉयज। लेकिन अगर प्लूरल में ही कोई चीज मुझसे दूर है तो मैं दोज का यूज करूंगी, दोज बॉयज, दोज पिक्चर्स, दोज पेन्स एटसेट्रा। सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो हैं ये पॉइंट आउट करते हैं ऑब्जेक्ट को टू विच दे रेफर, और दीज आर 4 इन नंबर, दिस, दैट, दीज, दोज। एग्जाम्पल भी हमने साथ साथ ले लिए हैं, क्लियर हो गया है। दिस इज माई हाउस, दैट इज योर हाउस, दीज आर माई बुक्स, दोज आर योर बुक्स। So this is how demonstrative pronoun is also clear. Now let us come to the indefinite pronouns. Indefinite pronouns, which is our 8th one. So these pronouns refer to persons or things in a general way. These pronouns refer to the person or things in a general way. They do not refer to any particular person or thing. ये किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के बारे में नहीं बताते, ये हमें जनरल बताते हैं कि भाई इतनों में से कोई भी हो सकता है, इट मे बी एनीबडी। सो द वर्ड्स विच वी यूज फॉर इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर वन, नन, सम, मैनी, समबडी, एनीबडी, फ्यू, अदर, ऑल, एटसेट्रा। सो नाउ लेट अस टेक द एग्जाम्पल टू मेक इट मोर क्लियर। None wept on her death. None wept on her death. Never abused others. Some sat and few stood. All turned him out. One should do one's duty, and many of them were Indians. So this is how it is clear. None word हमने use किया, तो none कोई भी हो सकता है, और never abuse others ये पर्टिकुलर नहीं बताया कि आप शाम को अब्यूज मत करो, राम को अब्यूज मत करो, सबके लिए कॉमन जनरल वर्ड जो यूज किया है दैट इज अदर्स। ऐसे ही सम को, फ्यू को हमने यूज किया है सबके लिए, ऑल में सभी आ जाएंगे। ऐसे ही वन शुड डू वंस ड्यूटी, तो वो कोई भी एक हो सकता है, पर उसने सभी के लिए डिवाइड कर दिया है कि सभी को अपनी ड्यूटी अच्छे से करनी चाहिए। मैनी ऑफ देम वर इंडियंस, तो यहाँ पे मैनी में कितने भी हो सकते हैं, 10, 20, 30, 40, हरियाणा के हो सकते हैं, पंजाब के हो सकते हैं, साउथ के हो सकते हैं। तो दिस इज हाउ यहाँ पे हमने किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात नहीं की है, बल्कि सबको जनरल में लेके बात की है, वो कोई भी हो सकता है। तो दिस इज हाउ स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड द इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब चलिए चलते हैं हम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस पे, जो हमारा 9th प्रोनाउन है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, दिस इज अ प्रोनाउन दैट एक्सप्रेसेस अ म्यूचुअल रिलेशनशिप। दिस एक्सप्रेसेस अ म्यूचुअल रिलेशनशिप्स। They refer to a situation where someone or something performs an action on others and receives the same action in return. जो आप दूसरे पर एक्शन कर रहे हो वही आपको रिटर्न में मिल रहा है, that is called the reciprocal pronoun. Like each other, one another are the words which we use here. Each other is used for two persons. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि each other is used for two persons and one another is used for more than two persons. Example अब हम यहाँ पे लेते हैं, Andrew and Bill. Andrew and Bill helped each other. Means Andrew helped Bill and Bill helped Andrew. Reciprocal, उसने उसका किया, उसने उसका, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल काम किया गया है। Andrew helped Bill and Bill helped Andrew. So the members of the team supported one another. Means each member of the team supported each other. So Romeo and Juliet love each other. Means Romeo loved Juliet and Juliet loved Romeo. They both other loved each other. Means the work which we perform, which we do and we receive the same in return is called the reciprocal pronoun. So this is how the reciprocal pronoun is also completed.
Now let us come to the possessive pronoun. It is very common also, and we have already discussed in the part of the personal pronouns. Yeah guys, same, that these are used to describe words that show who or what a person or thing belongs to. कि possessive pronoun जो possession show करता है कि ये चीज किसकी है, ये मेरी है, मेरी वर्ड यहाँ पे क्या है, possessive pronoun है. तो इसके वर्ड्स हैं जैसे mine, our, yours, his, hers, theirs. Like this is his pen, this is my book, this is yours, like this. तो जो पोजीशन शो करे, जो हक जमाता है, जो बताता है कि किसकी है ये चीज़, उसके लिए हम पोजेसिव प्रोनाउंस यूज़ करते हैं. सो गाइज, बड़े ही शॉर्ट में, बड़े ही इजी मेथड से हमने अपनी प्रोनाउंस और काइंड ऑफ प्रोनाउंस कंप्लीट कर लिए हैं. होप आप लोगों को समझ में आया होगा. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.